Hello everyone, welcome to your class. Today in this class we will do fractions worksheet. This worksheet is suitable for class 3 and class 4. The link for the same you will get in the description box. You can easily download it and take the printout. And now let's start the class. Question number 1. Fill in the blanks. First, a fraction is a part of a dash or dash. फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन होता है हम उसको किसका पार्ट बोलते हैं? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल. मीन्स जब पूरी कोई चीज़ होती है तो हम उसके पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, होल. एंड दूसरा हम नाम दे सकते हैं ग्रुप, GROUP, ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रैक्शन in which numerator is less than the denominator are called dash. जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर स्मॉल होता है एंड डिनोमिनेटर बिग होता है, उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर मीन्स जो चीज़ सही होती है उसको हम प्रॉपर बोलते हैं. सो सही फॉर्मेट क्या है? न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर. इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. Next one, dash fractions are those in which denominator is less than the numerator. See, this is the reverse question. Denominator is less than means denominator छोटा. These types of fractions are called improper fractions. Next question, in unit fractions numerator is dash. Unit fraction में numerator is always 1. न्यूमरेटर क्या होता है? ऑलवेज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड डैश. जिन फ्रैक्शंस के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, अलग होते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. अनलाइक. एंड जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं वी कॉल देम लाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट, two or more fractions that represent the same amount or fractions are called dash. जो दो या दो से ज़्यादा fractions सेम होते हैं उन fractions को हम क्या बोलते हैं? equivalent. equivalent fractions. The fractions which are same in number, they are called equivalent fractions. Next question. The combination of a whole number and a proper fraction is called dash. एक combination जिसमें whole number होता है and proper fraction होता है उसको हम क्या बोलते हैं? We call it mixed fraction. Mixed fraction जिसमें एक whole number होता है like this 2 and एक proper fraction होता है. Proper fraction means the numerator is less than the डिनोमिनेटर. इस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द फॉलोइंग. ए पार्ट 7/9 ऑफ 81. सो हाउ डू वी सॉल्व इट? वी विल फर्स्ट डिवाइड 81 by 9. सो वी विल राइट इट लाइक दिस. 81 डिवाइड बाय 9 विच विल बी इक्वल टू 9. मीन्स दिस इज 9. देन यू विल मल्टीप्लाई 7 with 9 which will be equal to 63. This will be the answer, 63. Next question. Find equivalent fraction of 5/6 with numerator 35. Numerator is 35. You have to change this numerator into 35. This is 5/6. And remember this thing, if you want to change the numerator with the bigger number or the denominator with the bigger number, you will always multiply. And when you will reduce it to the lowest term, you will always divide. So first of all, this is 5/6. You have to make this 5 the 35. So how you will make it? We will multiply it with 7. 5 7s are 35. So if we multiply the numerator with 7, you will also multiply the denominator with 7 to make it equivalent fraction. So how do we do it? This is 5/6. You will multiply both with 7. So the numerator is 5 7s are 35 and this is 6 7s are 42. This will be the fraction. Next,
फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/12 अप टू 3 प्लेसेस मीन्स आपको 5/12 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं अप टू 3 places. How do we do this? This is 5/12 if you multiply it with 2. So first of all this is 5 to the 10 and 12 to the 24. This is the first fraction you can make the equivalent fraction. Next 5/3 and 12 into 3. 5 3 is a 15, 12 3 is a 36. Next 5 multiplied by 4 and 12 multiplied by 4. 5 4s are 20, 12 4s are 48. This is how these are the 3 equivalent fractions you can form by multiplication. Let's move on to the next point. Express 42/7 as a whole number. Whole number means any single number, it is called a whole number. 42/7. You will simply divide it. Then you will get 42 divided by 7. You will write it like this, 42 divided by 7. So the answer will be 6. 7 6 is a 42. Next, find an equivalent fraction of 48/66 by division. आपको यहाँ पे डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं. इस केस में हमने मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड किए थे. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू विल डिवाइड इट टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. So this is 48/66. You can divide it by 2. Divided by 2, the answer will be, this is 24 and this is 33. This is how we find the equivalent fraction by division. Next, express the improper fraction 61/9 as a mixed number. आपको इसको mixed number में express करना है. इस क्वेश्चन के लिए मेरी एक डेडिकेटेड क्लास है, हाउ टू चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर एंड द सेकंड वन मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वो आप जाके वॉच कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. यू विल सिंपली डिवाइड इट. हाउ यू विल डिवाइड? 61/9. सो दिस विल बिकम 9 6 54. वी विल subtract it. The answer will be 7. So how do we make the mixed fraction? This is 6 7 and 9. This is how we make the mixed fraction. The formula for the mixed fraction is mixed number is equals to quotient. This is remainder and this is divisor. This is the formula to make the mixed number by division. You will divide it and now in this formula you will put the numbers and make the mixed number. Next one, express the mixed number 6/3/8 as improper fraction. जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये दोनों पार्ट्स मैंने उस क्लास में कंप्लीट किए हैं, वो आप जाके वॉच कर सकते हैं. सो हाउ डू वी सॉल्व इट? 8 6 48 plus 3 51. So the answer will be 51/8. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इनको कंपेयर करना है. दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कंपैरिजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो हमेशा हम लाइक फ्रैक्शंस में कर पाते हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दिस फ्रैक्शन इनटू द लाइक फ्रैक्शन. आपको इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो आप कन्वर्ट कैसे करते हैं? सो टू कन्वर्ट दिस व्हाट यू विल डू इज मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन विद this denominator and this fraction with this denominator. I will show you how. The fraction 3/8 you will multiply it with the denominator of another fraction. This is how. And इसको आप कैसे करेंगे? 5/7 multiplied by the denominator of another fraction. इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे. 3 7s are 21, 8 7s are 56, 5 8s are 40 and 7 8s are 56 again. So you can simply now check which is smaller and which is greater. This is 21/56 and this is 40/56. So which one is bigger? This one. So you can simply answer this. You can write it like this: 21/56 and 40/56, and now you can put the sign.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स। आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है एंड देन यू विल हैव टू रिड्यूस इट। ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो हाउ डू वी सॉल्व इट। 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 11, 11 बाय 9 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 5 बाय 3। नाउ दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। आपको इसको क्या करना है, अब लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन विद दिस डिनोमिनेटर एंड दिस फ्रैक्शन विद दिस डिनोमिनेटर। आप इसी तरह से इसको चेंज करेंगे। 11 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इज 5 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। इस तरह से आप इसको चेंज कर देंगे। 11 3 ज़ा 33, 9 3 ज़ा 27, 5 9 ज़ा इज़ 45 एंड 3 9 ज़ा इज़ अगेन 27. Now 33 by 27 plus 45 by 27. अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। द आंसर विल बी 78 एंड दिस इज 27, 78 by 27. नेक्स्ट, अब आप इसको कट कर सकते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 एंड दिस इज 18, तो 3 6 ज़ा 18। आंसर विल बी 26 by 9। अब आप इसको क्या करेंगे, अगर ये कट नहीं होते हैं देन यू विल चेंज इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड 9 एंड यहाँ पर 26। आप इसको डिवाइड करेंगे, सो 9 2 ज़ा 18 माइनस आप करेंगे तो द आंसर विल बी 8। फ्रैक्शन बनाने के लिए जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, क्वेश्चंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। दिस इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अभी क्वेश्चंट यहाँ पर क्या आएगा 2, रिमाइंडर इज 8 एंड द डिवाइज़र इज 9। इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म हो जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, टीना सेलिब्रेटेड हर बर्थडे पार्टी। आफ्टर द पार्टी 4 by 8 of the pizza was left. How much pizza did they eat? This is the word problem. जिस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है, टीना एक गर्ल है, उसने बर्थडे पार्टी अपनी सेलिब्रेट की थी। आफ्टर द पार्टी द 4 by 8 पिज़्ज़ा वॉज लेफ्ट। 4 by 8 जो फ्रैक्शन है वो पिज़्ज़ा लेफ्ट, मतलब वो बच गया। एंड अब आपको बताना है हाउ मच पिज़्ज़ा डिड दे ईट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल पिज़्ज़ा। टोटल आप किस तरह से लेंगे, इसमें आप टोटल तो हमें गिवन नहीं है, सो हाउ डू विल टेक इट द फुल टोटल पिज़्ज़ा आप किस तरह से काउंट करेंगे। 4 by 8 है यहाँ पर, पिज़्ज़ा लेफ्ट, दैट मीन्स जो ये डिनोमिनेटर है ये क्या है, ये टोटल है ना। टोटल को ही हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं एंड जो पार्ट होता है उसको हम ऊपर न्यूमरेटर पे लिखते हैं। सो दिस इज़ द टोटल वन, सो यू कैन राइट टोटल पिज़्ज़ा एज 8 by 8, राइट। नेक्स्ट, पिज़्ज़ा लेफ्ट, पिज़्ज़ा लेफ्ट कितना है 4 by 8, तो पिज़्ज़ा ईटन वो हम किस तरह से निकाल देंगे, टोटल इज़ 8 by 8 माइनस द लेफ्ट वन। जितना टोटल था एंड जितना बचा उसको अगर हम माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट द पिज़्ज़ा ईटन। नाउ यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट इट बिकॉज दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन अब ये बन गए हैं। 8 minus 4 इज़ 4। नाउ कट इट, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 by 2. So now you can write the answer. Now you can write the answer. So 1 by 2 pizza was eaten in party. पार्टी में हाफ पिज्ज़ा खाया गया। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।